Hello friends, this is Ravindra Gajjar for Tamron India. Today I am quite happy to announce one of the most awaited super telephoto zoom lenses for Sony full frame E-mount mirrorless camera users, and that lens is Tamron's 150 to 500 mm f5 to 6.7 Di3 VC-VXD lens. With announcement of this lens, Tamron has added 11th lens in its raw for Sony's full frame and APS-C sensor mirrorless camera systems. फ्रेंड्स, ये लेंस को बनाया गया है सोनी फुल फ्रेम ई माउंट मिररलेस कैमरा सिस्टम्स के लिए, बट सोनी के ही APS-C सेंसर के मिररलेस कैमरा सिस्टम्स पर भी आप ये लेंस को परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सभी बॉडी स्पेसिफिक फंक्शंस और लेंस के फंक्शंस रिटेन होंगे। सिर्फ एक डिफरेंस आपको महसूस होगा इन टर्म्स ऑफ व्यू फाइंड कवरेज ऑफ दिस लेंस। जो APS-C सेंसर के सेंसर बेस्ड क्रॉप फैक्टरी की वजह से आपको थोड़ा सा फोकल लेंथ मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ये लेंस की वजह से। तो शायद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आप मैग्निफिकेशन तो इंप्रूव नहीं कर सकते, बट इन कैमरा क्रॉप की वजह से ड्यू टू स्मॉलर सेंसर आपको एक ऑब्जेक्ट की तक पहुंचने का, एक रीच का एडवांटेज मिलेगा। Friends, I have been using this lens for almost 20 days now, and I have tested the lens onto a rigorous shooting practical ground and into adverse shooting conditions for different assignments like say wildlife photography, some outdoor far landscape and nature photography. As a target group for this lens is those professional and semi-professional photographers, those who want nothing else than excellence in image quality, and they could be exploring different genres of photography like say wildlife photography, outdoor sports photography, far landscape photography and nature photography. In the remaining part of this review and subsequent session, I'll be sharing some real life images captured with this lens, some footage captured with this lens, wherein I will be neutrally testing this lens in terms of its resolution rendering ability, its contrast and micro contrast rendering ability, the first and foremost, most important thing for a telephoto zoom lens and specifically super telephoto zoom lens, the focusing accuracy and mainly focus tracking ability of that lens for moving objects. Some of the other elements as well. When this lens is mounted on a kind of very lightweight and compact camera system of Sony, how easy or difficult is to handle this lens. So from every point of view, say like bokeh quality, out of focus areas, some of the other elements as well, which are contributing to ultimate image quality. I have tested this lens and I will be happy to share those findings with you. So friends, stay connected. Friends, for any lens, एक कोई भी लेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 पैरामीटर्स होते हैं, पर जब भी हम सुपर टेलीफोटो जूम लेंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख 2 विशेषताएं आती है जिस पर हमें बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसका ओवरऑल वेट हैंडलिंग एबिलिटी। जब हम उसको सोनी कैमरा सिस्टम्स, जो हालांकि बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होती है, उसके साथ जब हम एक सुपर टेलीफोटो जूम लेंस को यूज़ करते हैं तो हैंडलिंग में वो कितना ईजी है, कितना मैन्यूवरेबिलिटी, कितना ईजी टू यूज़ है, वो सबसे प्रमुख उसका एक विशेषता या तो USP मानी जाती है। फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी ये है कि वो एक लेंस साइज में कितना है और वो कितना एक डाइवर्स फोकल लेंथ कवर करता है। फ्रेंड्स, 150 mm के वाइड एंड से लेकर 500 mm के सुपर टेलीफोटो एंड तक ये लेंस एक डाइवर्स फोकल लेंथ कवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि आउटडोर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और आउटडोर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए ये कॉम्पैक्ट साइज के लेंस के साथ f5 का वाइड ओपन एपर्चर 150 mm पर और f6.7 का एपर्चर 500 mm पर देना एक हालांकि एक अचीवमेंट होगा। जब आप ये सुनेंगे कि ये लेंस का ओवरऑल वेट क्या है, ओवरऑल वेट ये लेंस का सिर्फ 1725 ग्राम्स है विदाउट ट्राइपॉड कॉलर, तो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि ये लेंस को सोनी कैमरा सिस्टम्स के साथ यूज करना कितना आसान, कितना कंफर्टेबल होगा। फ्रेंड्स, व्हेन आई सेड इट, दिस लेंस इज absolutely suitable for professional photographers. You must be wondering, if there is a professional photographer, he must be looking forward to get a kind of super telephoto prime lens that has its own value, no doubt, in terms of light transmission, say image quality, say sharpness and some other factors as well. But if you see those professional and super professional photographers also, they will carry 2 bodies at a time. On one body they could be mounting a say super telephoto prime lens, and on another body they could be carrying another 70-200 mm telephoto zoom lens. The reason is that with 500 mm focal length and into that prime lens, or 600 mm focal length and with a prime lens, always you cannot decide your subjects to be far away.
if there is a very nearby object or like that, you cannot frame them, and while flying objects you cannot even frame them into viewfinder properly, because due to that focal length and magnification, the bird will suddenly go out of your viewfinder. So at that point of time you need flexibility in terms of focal length, and flexibility can be optimally given by a telephoto zoom lens and super telephoto zoom lenses. So as far as wildlife is concerned and outdoor photography is concerned, say far landscape, nature photography, sports photography also, super telephoto zoom lenses have advantages, specific advantage. They give you flexibility in terms of focal length. जो फोटोग्राफ्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फर्स्ट फोटोग्राफ है 150 mm के वाइड एंड पर लिया हुआ, जिसका एपर्चर वैल्यू है f5, एंड आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली इन सेंटर एरिया बट कॉर्नर एरिया में भी शार्पनेस बरकरार रखता है ये लेंस। जब ये लेंस को आप फुल जूम इन करते हैं और 500 mm की फोकल लेंथ पर ले जाते हैं तो वहाँ पे भी f6.7 के मैक्सिमम ओपन एपर्चर पर यह लेंस एब्सोल्युटली शार्प इमेज रेंडर करता है, नॉट ओनली इन सेंटर पार्ट बट इनटू कॉर्नर पेरिफेरल एरियाज एज वेल। फ्रेंड्स, ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इमेज को एक्सट्रीम बैकलाइटिंग कंडीशंस में कैप्चर किया गया है। फिर भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के ऊपर एक विजिबल एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रास्ट लेवल मेंटेन होता है, एंड बैकलाइटिंग होने के बावजूद भी यह लेंस के कोटिंग्स, जो ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स ये लेंस के फ्रंट मोस्ट एलिमेंट और इनर एलिमेंट्स पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आपको जीरो फ्लेयर दिखाई देता है। यह लेंस के अंदर ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का इंप्रूव्ड वर्जन BBAR जनरेशन 2 वर्जन यूज किया गया है। फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लेंस के लिए रहती है उसका एक्यूरेट फोकस, और स्पेसिफिकली जब हम सुपर टेलीफोटो जूम लेंस की बात करें, जिसको हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज करते हैं, उस टाइम पर सब्जेक्ट को एक्यूरेटली ट्रैक करना और फोकस कंटिन्यूसली बरकरार रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कोई भी एक लेंस के लिए। तो दोस्तों, ये जो इमेजेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनटू दैट आई वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड प्रोबेबली ओवरवेल्म्ड विथ परफॉर्मेंस ऑफ ऑटोफोकस ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ दिस लेंस, and credit of this goes to its VXD drive, and that is called voice coil extreme torque drive। ये VXD ड्राइव में एक ड्यूअल फोकसिंग यूनिट रहते हैं जो एक दूसरे के फाइन ट्यूनिंग में बहुत ही परफेक्टली काम करते हैं। आइदर कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट फोकसिंग सिस्टम आपके कैमरा में हो या फेस डिटेक्शन फोकसिंग सिस्टम हो, दोनों के लिए ये एक लीनियर मोटर टाइप मैकेनिज्म, जिसको एक स्पेसिफिक गाइड सिस्टम पर बिठाया गया है और जो एक लीड स्क्रू से ऑपरेट होता है, और डायरेक्टली ड्यूअल फोकसिंग यूनिट को वो एक्टिवेट करता है और इनटू लो कॉन्ट्रास्ट, लो लाइटिंग या तो बैक लाइटिंग सिचुएशन में भी वो एक एक्यूरेट फोकस कंफर्म करता है, फोकस लॉक करता है, और अगर आप कंटिन्यूस फोकस मोड में है तो कंटिन्यूस फोकस ट्रैकिंग कर सकता है। जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें बीच में कुछ ग्रास बीच में आ रही है और उसके जस्ट पीछे पेंटेड स्टॉर्क बर्ड है। एक बार पेंटेड स्टॉर्क बर्ड पर फोकस लॉक हो गया, उसके बाद कंटिन्यूस बर्स्ट में भी वो उसके जस्ट आगे रहे ग्रास में कहीं पे भी फोकस शिफ्ट नहीं हुआ। फ्रेंड, ये जो सीरीज ऑफ इमेजेस आप देख रहे हैं जिसमें बर्ड कैमरा की तरफ उड़ के आ रहा है, यानी टुवर्ड्स कैमरा एक्शन में भी ये लेंस एब्सोल्युटली एक्यूरेट फोकस ट्रैकिंग करता है। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी जहाँ पे सब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, जिसको एक कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट फोटोग्राफी बोलते हैं, उसमें जो अनप्रिडिक्टेबली मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी ये लेंस का वॉइस कॉइल एक्सट्रीम टॉर्क ड्राइव, जो VXD ड्राइव एक बहुत ही इनोवेटिव ड्राइव है, वो एक्यूरेटली ट्रैक करता है और एब्सोल्युटली शार्प टेक शार्प ऑटोफोकस देता है। फ्रेंड्स, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 150 mm ऑफ वाइड मोस्ट एंड ऑफ दिस लेंस टू टेलीमोस्ट एंड ऑफ 500 mm, द लेंस विल एक्सटेंड इन साइज। So I can say it is external zoom lens. So while zooming and zoom out, the lens will extend and retract in size. तो आपको शायद क्वेश्चन ये दिमाग में आता होगा कि क्या ये लेंस एक वेदर सील्ड या प्रोफेशनल ग्रेड लेंस माना जाएगा। फ्रेंड्स, ड्यू टू यूजेज ऑन मिररलेस कैमरा सिस्टम्स विच आर कॉल्ड वेरी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, उसकी वजह से स्पेसिफिक डिज़ाइन फीचर की वजह से एक्सटर्नल जूम लेंस बनाने का एक रिक्वायरमेंट रहता है। सो बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन फिलोसफी ये लेंस को एक्सटर्नल जूम लेंस बनाया गया है, जो एक साइज में कॉम्पैक्ट तो है बट अलॉन्ग विद दैट वो एक बहुत ही प्रोफेशनल ग्रेड वेदर सील्ड और मॉइस्चर रेजिस्टेंट लेंस है। लेंस के फ्रंट मोस्ट एलिमेंट, लेंस के जूम रिंग, फोकस रिंग और माउंट एरिया और जितने भी मूविंग पार्ट्स है जहाँ से थोड़ा भी मॉइस्चर या वाटर पेनिट्रेट हो सकता है, वो हर एक पार्ट पर गास्केट्स, सीलेंट्स और ओरिंग्स लगाए गए हैं। यानी कोई भी एडवर्स सिचुएशन में जहाँ पे इन डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस या आउटडोर में भी
आप ये लेंस को विदाउट एनी फियर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि ये सुपर टेलीफोटो जूम लेंस गिवन बाय Tamron कम्स विथ वन स्पेसिफिक इंसेंटिव, एक स्पेशल इंसेंटिव लेके आपके पास आता है, तो आपको कैसा लगेगा? यू मस्ट बी वंडरिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये लेंस के अंदर एक बहुत ही प्रोमिसिंग क्लोजअप एबिलिटी है। जब यह लेंस को आप उसके वाइड मोस्ट एंड यानी 150 mm पर मैनुअल फोकस में यूज़ करते हैं, तो यह लेंस 150 mm एंड पर 1:3.1 मैग्निफिकेशन देता है और मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं वो ओनली 0.6 मीटर अवे ऑब्जेक्ट्स होता है आपके फोकल प्लेन इंडेक्स से। यानी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह लेंस को आप एक प्रॉमिसिंग क्लोजअप्स उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बारिश के टाइम में, अभी रिसेंटली कोई एक स्टॉर्म आया था, उस टाइम पे मैंने बारिश में फोटोग्राफ लिए हैं और वो फोटोग्राफ आप देखेंगे तो दे आर नेक्स्ट टू मैक्रो एबिलिटी ऑफ फोटोग्राफ्स। फ्रेंड्स, अगर यह लेंस के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यह लेंस का मॉडल नंबर है A057। यह लेंस एक डाइवर्स फोकल लेंथ को कवर करता है 150 mm से लेकर 500 mm तक। लेंस की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर 25 एलिमेंट्स को 16 ग्रुप्स में फिट किया गया है, जिसमें 2 हाइब्रिड स्फेरिकल लेंस एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्फेरिकल एब्रेशंस या रेडियल एब्रेशंस को थरली मिनिमाइज किया जाता है और एलिमिनेट किया जाता है। लेंस में एक एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास फिट किया गया है और 5 लो डिस्पर्शन ग्लासेस हैं। सो ये एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास और लो डिस्पर्शन ग्लासेस को कैल्शियम फ्लोराइड के लैब बेस्ड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर लाइट ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छा पाया जाता है और रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट मिनिमम पाया जाता है। सो इन टोटल इसके अंदर कोई 8 स्पेशलाइज्ड लेंस एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से यह लेंस एक बहुत ही बेहतर सुपीरियर इमेज क्वालिटी, शार्पनेस और माइक्रो कॉन्ट्रास्ट रेंडर करता है। एपर्चर वैल्यू है f5 to 6.7। यह लेंस का फिल्टर साइज है 82 mm। लेंस का मैक्सिमम डायमीटर है 93 mm। यह लेंस में 7 ब्लेड सर्कुलर एपर्चर डायफ्राम को एम्प्लॉय किया गया है। जब लेंस को आप उसके मैक्सिमम ओपन एपर्चर से फुल 2 स्टॉप डाउन करते हैं, फिर भी यह एपर्चर का ओपनिंग एब्सोल्युटली सर्कुलर रहता है, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड, आउट ऑफ फोकस एरियाज और बोके बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल रेंडर होते दिखते हैं। यह लेंस का मिनिमम एपर्चर वैल्यू f22 एंड f32 है। स्टैंडर्ड एक्सेसरी में बात करें तो यह लेंस एक राउंड शेप्ड रबराइज्ड फ्रंट एलिमेंट वाले हुड के साथ आता है। ट्राइपॉड कॉलर के बेस में एक आर्का स्विस प्लेट लगाया गया है, जिसकी वजह से गिम्बल हेड पर या कोई भी एप्लीकेबल ट्राइपॉड हेड पर आप यह लेंस को इसके माउंट के साथ सीधा ही अटैच कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह ट्राइपॉड माउंट में स्ट्रैप लगाने के होल्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप लेंस के थ्रू एक स्ट्रैप लगाकर बॉडी को इजीली हैंडल कर सकते हैं, शोल्डर पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह A057 मॉडल ऑफ लेंस Tamron 150 to 500 mm f5 to 6.7 DI3 VC VXD लेंस में एक Tamron का प्रोप्राइटरी ऑप्टिकल वाइब्रेशन कंपेंसेशन को विद इन लेंस इटसेल्फ फिट किया गया है और उसको ऐसे फाइन ट्यून ऑप्टिमाइज किया है कि सोनी कैमरा सिस्टम्स के इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन, जो सेंसर बेस्ड ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है, उसके साथ परफेक्टली फाइन ट्यूनिंग में काम करता है और आपको एक ऑप्टिमल वाइब्रेशन कंपेंसेशन एक्सपीरियंस देता है। यह लेंस के अंदर स्पेसिफिकली VC के 3 मोड दिए गए हैं। मोड 1 इज अ स्टैंडर्ड मोड जो एक कंफर्टेबल शूटिंग एक्सपीरियंस देता है सेंसर बेस्ड वाइब्रेशन कंपेंसेशन के साथ फाइन ट्यूनिंग में। सेकंड मोड है मोड 2, वो एक्सक्लूसिवली पैनिंग के लिए है, यानी जब आप फोटोग्राफी में पैनिंग करते हैं तब वो पैनिंग में वर्टिकल मूवमेंट या अगर वर्टिकल पैनिंग करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो मूवमेंट्स को वो एक स्टेबलाइज करता है। और मोड 3 है वो स्पेसिफिकली फ्रेमिंग प्रायोरिटी के ऊपर है, यानी डिपेंडिंग ऑन योर फोकल लेंथ एंड कवरेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग एंड मैग्निफिकेशन वो एक ऑप्टिमम वाइब्रेशन कंपेंसेशन इफेक्टिवनेस देता है। द लेंस, its overall exterior finish, its overall touch philosophy, and that is quite like human touch. The lens employs 4 distinctive switches, into which the first switch is distance limiter switch, which will specifically limit the focal distance in certain area in order to quicken the focus and to limit the focus ring rotation function. So for wildlife and sports photography, when you want to focus at certain distance and certain limit, not even at macro ability or not at infinity distance, so into that specific zone of selection, if you want to get accurate and fast focus,
you can try using this distance limiter function. Apart from that, there is one switch which is autofocus and manual focus switch. Third switch is a vibration compensation on and off switch. And the fourth switch, it is giving you selection of VC modes, mode 1, mode 2 and mode 3. Apart from that, the most innovative feature is flex zoom mechanism of this lens's zoom ring. At any focal length, you can pull out the zoom ring and you can lock unintentional movement of lens's barrel going in and out. Another, the most important convenience feature has been added into zoom ring rotation. When you take the lens from 150 mm of wide end to 500 mm of super telephoto end, the overall rotation of zoom ring is only 75 degree. When you compare it with some other super telephoto zoom lenses, they require almost 170 degree of rotation of zoom ring. और लेंस के फ्रंट मोस्ट एलिमेंट पर फ्लोरीन कोटिंग लगाया गया है, जिसकी वजह से डर्ट, मॉइस्चर, कोई वाटर ड्रॉपलेट्स और वो सब यह लेंस के फ्रंट मोस्ट एलिमेंट पर चिपकते नहीं हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में आप यह लेंस को फियरलेसली यूज कर पाएंगे. आपको फ्रंट एलिमेंट बार बार क्लीन अप नहीं करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस इमेजेस विच आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. They have been taken at different aperture values, different shutter speeds and into different lighting conditions. You can check and judge the lens in terms of its resolution rendering ability, contrast and micro contrast, whether it renders aberrations or not. How does lenses coatings perform when image have been shot against light situations and like that. Friends, a lens developer will always try to achieve excellence in image quality. Probably there is no such a perfect lens in this world and probably cannot be built also. So friends, always lens developers try to prioritize on two main objectives: the cost factor involved in developing of a lens and the overall image quality to suit that of its target users group. So friends, looking from this two-dimension point of view, this lens is a really very good lens, and you can see, you can judge its overall results from image quality, from its overall weight, dimensions, overall size, and those convenience factor point of view when you are going to use this lens on mirrorless camera systems of Sony. Apart from that, the overall image quality, the flexibility in terms of focal length given by this lens, the macro or nearly macro shooting ability, a promising close-up shooting ability given by this lens, and some of the other winning features, its overall flexibility point of view, convenience factor point of view aspects, they all will amaze you. You can try this lens. I have been using this lens for last 20 days and I have found this lens a very sharp and very promising lens for super telephoto zoom category and specifically for wildlife, outdoor sports, far landscape, nature photography and some of the other assignments as well. So friends, looking at the overall legacy of Tamron and its consistency in product development, looking from the company's lineup of DI3, that is Sony full frame mirrorless E-mount and A-mount mirrorless camera systems, and looking at the overall image quality rendered by some other lenses as well which are into lineup of Sony, if you buy this lens, if you go for this lens, if you try this lens, you will never be disappointed. Friends, this was Ravindra Gujjar for Tamron India. Wish you nice shooting ahead.